Shall we turn our Bibles to 2 Corinthians chapter 7, हम खोलेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय verse 1. उसका पहला वचन। It says here, I would like to read that from the Amplified Version. मैं एम्प्लीफाइड वर्जन का जो अनुवाद है उसमें से पढ़ना चाहूंगा। It says here, therefore, uh, since these great promises are ours, beloved, let us cleanse ourselves from everything that contaminates and defiles body and spirit, and bring our consecration to completeness in the reverential fear of God. हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। So it starts with therefore. यहाँ पे इसकी शुरुआत होती है हे प्यारो। So that means we have to uh, go back to the previous few verses. इसका Why मतलब ये हुआ कि हमें पिछले अध्याय की ओर जाना चाहिए। why it is saying therefore, यहाँ so पे that yeah, यहाँ पे इसलिए जबकि क्यों कहा गया है, so that we know in what context this verse comes from. ताकि हम ये समझ पाए कि ये जो वचन है किस संदर्भ से आया है। It says in verse 14 चौदह of वचन the में, previous chapter. पिछले अध्याय के 14 वचन में It speaks about uh, the privileges of being a child of God and यहाँ पे a child of the devil. एक परमेश्वर के संतान होने के नाते जो सौभाग्य मिलेगी उसके बारे में, और एक शैतान के संतान के बारे में कहा गया है। It says here in verse 14, do not be bound together with unbelievers. यहाँ पे 14 वचन में कहा गया है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, For what partnership have righteousness and lawlessness? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, Or what fellowship has light with darkness? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, Or what harmony has Christ with Belial? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, Or what has a believer in common with an unbeliever? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, Or what agreement has the temple of God with idols? और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, For we are the temple of the living God. क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। Paul makes it very clear here distinction between God's children and who are not God's children. यहाँ पे पौलुस जो है बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि परमेश्वर के बच्चों में और शैतान के संतान में क्या फर्क है। He says clearly who we are. वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम कौन हैं। Number one, we are believers. सबसे पहली बात, हम विश्वासी हैं। And secondly, he calls us righteousness. और दूसरी बात हमें वो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, And he calls us light. और वो हमें ज्योति कहते हैं, And he calls us Christ. और वो हमें मसीह कहते हैं, And he calls us temple of God. और वो हमें परमेश्वर का मंदिर कहते हैं। So he calls us with these five titles और यहाँ पे in contrast with five opposite ones. वो जो है हमें 5 शीर्षक दिए हैं, दूसरे जो 5 वचन है उसके विरुद्ध में। And he says, for we are the temple of God. यहाँ पे वो कहते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, And the Lord says, I will dwell in them and walk among them. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनके बीच वास करूंगा और मैं कार्य करूंगा, And I will be their God and they shall be my people. और वो मेरे लोग ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा।
And it says, therefore, again it says, therefore, come out from their midst and be separate, फिर से कहा गया है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, and do not touch what is unclean, and I will welcome you. और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। I will be father to you, and you shall be sons and daughters to me, और says तुम्हारा the Lord Almighty. और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। In that connection, he says, therefore, let us cleanse ourselves from all defilements of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. और इससे जोड़कर वो कहते हैं कि सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। I want to emphasize mainly on this one phrase, यहाँ पे जो एक वाक्य है उस पर मैं जोर देना चाहूंगा। that is perfecting holiness in the fear of God. वो है परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करना। We all want to um, press towards holiness and become more and more holy. That is the desire of our hearts. हम सबकी इच्छा है कि हम जो है इस पवित्रता की ओर बढ़ते जाए और ज्यादा से ज्यादा पवित्र बनते जाए, ये हमारे हृदय की लालसा है। But there are two types of pursuit of holiness. और दो प्रकार के पवित्रता पाने की खोज हो सकती है। One is, I want to be perfect in the sight of God, in the sight of men. एक ये हो सकता है कि मैं मनुष्यों के सामने सिद्ध ठहरूं, I want to have a good testimony मैं एक अच्छी गवाही रखना चाहता हूँ before people. लोगों के सामने। And if I live by that principle, I live with constant tension to be on guard, यदि मैं ये इच्छा के साथ जीऊंगा तो हमेशा जो है एक चिंता चिंता भरे मन के साथ रहूंगा, because I'm all the time worried about what so and so thinks of me, how I should behave myself, what I should say, and all such things. I have to be on guard all the time. मुझे हमेशा ये बात की चिंता रहेगी कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं किस प्रकार से बात करूं, किस प्रकार से व्यवहार करूं, तो हमेशा मैं एकदम संभल कर रहने की कोशिश करता रहूंगा। And when nobody is watching me, I'm a different person. जब जब कोई भी मुझे देखता नहीं होगा तो मैं एकदम अलग व्यक्ति बनूंगा। I try to live before man's face all the मैं- time. और हर समय मैं मनुष्य के सामने जीने की कोशिश में रहूंगा। And I am not aware that God is watching over me. और मुझे इस बात का बिल्कुल पता ही नहीं रहेगा कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। The Bible says that God knows our thoughts, He reads our mind. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे मन के विचारों को जानता है, वो हमारे मन को पढ़ता है। What we are thinking, what we are imagining, what is our motive and desire, all that God sees, which man cannot see. और हम क्या सोच रहे हैं, हमारी कल्पनाएं क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ परमेश्वर देखते हैं, जो कि मनुष्य नहीं देख पाता। But a person who perfects holiness in the fear of God is the one who lives before God's face. और जो व्यक्ति परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करता है, वही व्यक्ति है जो कि परमेश्वर के सामने जीता हो। He is the one who is all the time thinking about God, in the sense that he is aware that God is watching over me all the time. और वो ऐसा व्यक्ति होगा जो हमेशा ही परमेश्वर के बारे में सोचता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जानता है कि परमेश्वर उसको देख रहे हैं। We read about that in Psalm 139, हम उसके बारे में पढ़ते हैं भजन संहिता 139 में, where David says, Lord, you know my going out and coming in. जहाँ पे दाऊद ये कहता है कि प्रभु मेरा जाना आना आप जानते हो, You know my sitting up and standing up. मैं बैठता हूँ उठता हूँ ये भी आप जानते हो। From afar off, you know what I'm
uh, going to say, और even मैं even when I have not said a word. जबकि मैंने एक शब्द कहा भी नहीं है, तब भी आप बहुत ही दूर से ये जानते हो कि मैं क्या कहने वाला हूँ। You saw me even when I was a substance being made in my mother's womb. जब मैं मेरे माँ के गर्भ में बनी रहा था, तब भी प्रभु तूने मुझे देखा। You have already decided about my life, the first day to last day. मेरे जीवन के बारे में आपने पहले से ही निर्णय ले लिया है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का। I cannot hide from your presence. प्रभु तेरी उपस्थिति से मैं छुप नहीं सकता। Where can I run away from you? आपसे मैं कहाँ भाग पाऊंगा। You surround me all around. मेरे चारों ओर आप घेरे हुए हैं। He lived with that consciousness that God is all the time watching over me. और इस एहसास के साथ वो जीवित रहा कि प्रभु परमेश्वर मुझे हर समय देखता है। And those who live with this attitude, जो कोई भी इस मनोवृत्ति के साथ जीता है, they are the ones who perfect holiness in the fear of God. वही है जो परमेश्वर का भय रखते हुए अपने आप को पवित्रता में सिद्ध करते हैं। And these people's holiness is eternal, और ये जो लोग हैं, इनकी जो पवित्रता है वो अनंत है। and it is true holiness. और ये सच्चाई की पवित्रता है। So they are not bothered about what the world thinks about them. इस बात से उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। Their main intention in life is to please the Heavenly Father alone. उनके जीवन का एक ही मकसद है कि वो अपने स्वर्गीय पिता को ही सिर्फ प्रसन्न करें। We see that in the life of Christ. हम इस बात को मसीह के जीवन में भी देख सकते हैं। We read about him in Isaiah 53 verse 1, और यशायाह की किताब 53 उसके पहले वचन में हम इसे पढ़ते हैं that he grew up before the Father's face. कि वो पिता के चेहरे के सामने ही बड़ा हुआ। And he was not bothered one bit also about what anybody thinks about him. और उससे बिल्कुल परवाह इस बात की नहीं थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। You know what all they called Jesus? आप जानते हैं कि प्रभु यीशु को लोगों ने क्या क्या कहकर पुकारा। Called him all sorts of bad names, but it didn't bother him because he was secure in the love of the Father. उसे सारे गलत गलत नामों से पुकारा गया, फिर भी उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा ही पिता परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित थे। And he said, I'm not alone. और My उसने कहा Father कि is with me. और उन्हें कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। And it also says in 1 Timothy chapter 1 verse 5. पहला तिमुथियुस पहला अध्याय उसका 5वां वचन। I would like to read this in the message translation first and then in the living translation. पहले मैसेज का जो अनुवाद है उसमें पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं इसे लिविंग अनुवाद में पढ़ूंगा। It says in the message translation, the whole point of what we are urging is simply this: आज्ञा का सारांश ये है, love uncontaminated by self interest and counterfeit faith, a life open to God. और इसकी शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। And in the living translation, it says, what I'm eager for is that all the Christians there will be filled with love, और लिविंग अनुवाद में ऐसा कहा गया है कि मैं इस बात के लिए उत्सुक हूँ कि जितने भी विश्वासी हैं वो प्रेम से भर जाएं, that love which comes from pure hearts, and that their minds will be clean and their faith strong. कि उनके वो जो प्रेम है शुद्ध मन और अच्छे विवेक से आए, और जो है वो जो प्रेम है वो एकदम सामर्थ्य हो, शक्तिशाली हो। So Paul says here, the goal of my
preaching and the goal of my writing epistles and letters to different churches and my labor in the Lord, the goal of all that is this. यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि मैं विभिन्न कलीसियाओं को जो पत्रियां लिख रहा हूँ और जिस जिस मनसा के साथ मैं सेवा कर रहा हूँ उसका मकसद ये है Is that is love from a pure heart वो है एक शुद्ध हृदय की ओर से आने वाला प्रेम and a good conscience और एक अच्छा विवेक and a sincere faith. और एक सच्चा एक ईमानदार विश्वास। These are the most important things in life, he says. वो कहते हैं कि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें यही हैं। And he says some people who have strayed away from these things and have made uh, shipwreck in their life. और वो कहते हैं कि कुछ लोग इस बात से भटक गए हैं और उसने उन्होंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया है They have turned aside to fruitless discussions. और वो बिना मतलब की बातचीत की ओर या चर्चा की ओर फिर गए हैं। So on and so forth. He goes on talking about certain people later on. But uh, उसके बाद वो अलग अलग लोगों के बारे में आगे कहते जाते हैं। and in verse 19, he says again, he mentions the same things, keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck regard to their faith. सॉरी ब्रदर, विच वर्स? Or 19th verse, इट्स 1 फर्स्ट, Timothy 1:19. पहला तिमुथियुस पहला अध्याय उसका 19वां वचन। और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहें, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। And he mentions two people by name. यहाँ पे दो लोगों के उन्होंने नाम लिए He is not afraid to call people by name and tell them, be careful about these fellows. और वो बिल्कुल भी डरे नहीं उन लोगों का नाम लेकर कहने के लिए कि इन लोगों से बहुत ही सावधान रहें। He says clearly there, among these are Hymenaeus and Alexander, और वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्हीं में से हमीनियुस और सिकंदर है, whom I have delivered over to Satan, so that they may be taught not to blaspheme. मैंने उन्हें शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखें। Some people think that a church that puts away people is not a friendly church, it's not a godly church. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो कलीसिया लोगों को बाहर निकालते हैं वो एक अच्छी कलीसिया नहीं है। They think that God loves everybody and we should love everybody and we should accommodate everybody, we should bear with everybody, we should tolerate everybody. वो ऐसा सोचते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम करना चाहिए, हमें सबके साथ सह लेना चाहिए, सबके साथ जो है संगति से आगे बढ़ना चाहिए। But Paul was not bothered about that. When he's writing to new churches which were being established in the first century, he gives them some certain guideline, godly guidelines. और पौलुस को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। पहली शताब्दी में जब कलीसिया की स्थापना हो रही थी तो कुछ निर्देश निर्देश जो है पौलुस बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्हें यहाँ पे देता है। He says about certain people who are uh, troublemakers. और यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में वो कहता है जो कि कलीसिया में जो है विघ्न डालने वाले हैं। And he tells them, avoid these people. और उनसे वो कहता है कि इन लोगों से दूर रहना। And he names them also. और उनके नाम भी वो लेता है। And not only that, he tells them to avoid such people, he says, as far as I'm concerned, I have handed them over to the devil. सिर्फ इतना ही नहीं कि वो लोगों से कह रहा है कि इन लोगों से दूर रहो, परंतु ये भी कह रहा है कि मैंने उनको शैतान के हाथ में सौंप दिया है। Some people might say, oh, Brother Paul, don't be so strict. They are not कुछ so लोग bad. Let us have hope for them. Let's pray for them. कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई पॉल आप इतने सख्त मत ठहरिए, उनके लिए थोड़ी दया दया दिखा दीजिए, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। He says, nothing doing. They had enough time all these days. वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनके पास बहुत समय पहले से ही था। Now I am handing them over not to the police or
any such institution, but I'm delivering them in the hands of Satan himself. वो कहता है कि मैं अभी उनको जो है कोई पुलिस अधिकारी के किसी और संस्था के हाथ में नहीं सौंप रहा हूँ, परंतु मैं उन्हें शैतान के हाथों में सौंप दे रहा हूँ। It's something very serious. कुछ बहुत ही गंभीर बात है यहाँ। He says the same thing in 1 Corinthians 5 also about some और immoral man. और यहाँ पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय में भी एक जो व्यभिचारी व्यक्ति है उसके बारे में भी वही कहता है। He says, put such fellow out of the church. वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को उन व्यक्तियों को कलीसिया के बाहर निकाल दो। I have handed him over to Satan. मैंने उसे शैतान के हाथ में सौंप दिया है। So this is for spiritual discipline that the Apostle Paul is doing these things. तो एक आत्मिक अनुशासन है जो कि प्रेरित पौलुस यहाँ पे कर रहे हैं। Some people take their Christian life seriously and it goes well with them. कुछ लोग अपने मसीही जीवन को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और उनके साथ अच्छा होता है। Some people take it casually and they think that oh, everything will be all right. God is a good, loving God. He will not send anybody to hell. और कुछ लोग जो बहुत लापरवाही से इस बात को लेते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत ही भले परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, वो किसी को नरक में नहीं भेजेंगे। We see only one side of God. हम सिर्फ परमेश्वर के एक पहलू को देखते हैं। God is a good and loving God, merciful God. परमेश्वर बहुत ही भले, प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। But on the other side of God, we don't see that is God of righteousness, judgment. परंतु परमेश्वर का जो दूसरा पहलू है हम नहीं देखते हैं कि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है, सच्चाई का परमेश्वर है। God is both loving at the same time he is God of justice and discipline. परमेश्वर जो है एक ही समय प्रेमी परमेश्वर भी है और परमेश्वर जो है न्याय करने वाला और अनुशासित परमेश्वर परमेश्वर भी है। That's why many times you see people straying away from the faith and losing their salvation. कई बार हम देखते हैं कि लोग जो है अपने विश्वास से भटक जाते हैं, अपने उद्धार को खो देते हैं। Some churches don't believe in that doctrine that one person can be, once a person is saved, he can lose his salvation. कुछ कलीसियाएं इस बात पर विश्वास नहीं करती है कि एक बार एक व्यक्ति के उद्धार होने के बावजूद भी वो अपने उद्धार को खो सकता है। They believe once saved, always saved. वो ये विश्वास करते हैं कि एक बार अगर उद्धार हो जाता है तो हमेशा के लिए उद्धार पा लिया। We don't believe in that. हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। We believe when a person is saved, that is evidenced by change of behavior. हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है तो उसका सबूत यह है कि उनका जो स्वभाव है, चरित्र है, वो बदलते जाता है। His life will bring forth fruit in keeping with repentance. और पश्चाताप के साथ आगे बढ़ते हुए उनके जीवन में जो है फल उत्पन्न होने लगेंगे। If the change is not there, if the fruit is not coming, then he is like a branch out of connection with the vine. यदि वो बदलाव नहीं है, यदि वो फल उसमें से नहीं आ रहा है, तो वो ऐसी एक डाली है जो कि उस झाड़ से अलग हो चुकी है। For such people, the Lord Jesus himself said in John 15 that they will gather those dry branches and they will throw them in the fire. और ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 15 अध्याय में कहा है कि ऐसे लोगों को, ऐसे डालियों को जो है जमा किया जाएगा और उन्हें आग में डाला जाएगा। Remember to whom these words are being spoken by Jesus. और इस बात को स्मरण रखिए कि ये जो बातें हैं प्रभु यीशु मसीह ने किसको कहा है। In chapter 13 of John, Judas got possessed by the devil and he went away, and it says it was night. और यूहन्ना उसके 13 अध्याय में हम देखते हैं कि यहूदा को जो है एक शैतान जो है दुष्ट आत्मा ग्रस्त कर लेता है और रात रात को वो कहीं चले जाता है। And chapters 14, 15, 16, there were only 11 people left with Jesus.
और अध्याय 14, 15 और 16 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बाकी सिर्फ 11 लोग ही बचे हुए होते हैं। And this particular word in chapter 15, Jesus says, I am the vine, you are the branches. और 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। If you abide in me, you will bear much fruit. यदि तुम मुझ पे बने रहोगे तो अधिक बहुत फल लाओगे। If you don't abide with me, you will be thrown off and you will be dried up and you will be gathered together and thrown into the fire. यदि तुम मुझ में नहीं बने रहोगे तो तुम्हें जो है बाहर फेंका जाएगा और जितनी भी सूखी हुई डालियां हैं उन सबको आग लगा दी जाएगी। He is not talking to the crowd or the public. He is speaking to these 11 disciples that are with यहाँ him on the last day of his life. प्रभु यहाँ पे भीड़ से या दूसरे लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु के आखिरी दिनों में प्रभु उनके साथ जो 11 चेले बचे हुए थे उनसे बात कर रहे थे। So, some these are the people who, I mean, those who do not take God's word seriously. These are the people who take God's love for granted. और ये ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं और परमेश्वर का जो प्रेम है उसे लापरवाही से लेते हैं। Because they love sin in their private life. क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन में वो पाप से प्रेम रखते हैं। And the same thing you read in Matthew 7:21 to 23. On that day, many will come in my name, saying, Lord, we did this, that, and the other. I tell them, depart from me, I never knew you. और यही बात प्रभु ने कहा मत्ती उसके 7वें अध्याय के 22-23 वचन में आखिरी दिन बहुत सारे लोग आकर मुझे कहेंगे कि प्रभु मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया और मैं उनसे कहूंगा कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। He tells them, depart from me, you workers of iniquity. और यहाँ प्रभु यहाँ से कहते हैं कि मुझसे अलग हो जाओ तुम अधार्मिकता के पुजारी हो। That means in their private life, they loved to sin more than to please God. इसका मतलब ये हुआ कि उनके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को खुश करने की बजाय उन्होंने जो है पाप से प्रेम रखा। And for such people, Jesus is telling these words, be careful. ऐसे ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सावधान रहो। We read a verse in Ephesians chapter 4, verse 30. हम पढ़ते हैं इफिसियों 4 उसके 13 में। Ephesians 4, verse 30. इफिसियों 4 उसका 13 वचन। I would like to read this in message translation. मैं इसे मैसेज के अनुवाद में पढ़ूंगा। Don't grieve God. परमेश्वर को दुखी ना करो, Don't break his heart. उसके हृदय को ना तोड़ो। His Holy Spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life. और जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर चलता फिरता रहता है वो महत्वपूर्ण भाग है जीवन का। Making you fit for himself. उसके लिए तुम्हें योग्य बनाए वो। Don't take such a gift for granted. ऐसे एक वरदान को हल्के में ना लो। Whenever we see something unchristlike in us, we should not just, you know, overlook it and tolerate it. जब भी कभी कोई बात हमारे अंदर मसीह के समान नहीं दिखता है तो हमें उसके पार नहीं देखना है, हमें जो है उसे अनदेखा नहीं करना है। We must come out clean. हमें उसमें से शुद्ध आना है। Uh, that means that I come to the light. इसका मतलब ये हुआ कि मैं ज्योति की ओर आता हूँ। When I come to the light, darkness is dispelled. और जब मैं ज्योति की तरफ आता हूँ तो अंधकार दूर हो जाता है। And when I come to the light, that means I want to expose the darkness in me. जब मैं ज्योति में आता हूँ तब मैं अपने अंदर का जो अंधेरा है उसका खुलासा करता हूँ। And that is what it means to walk in the light. इसी का अर्थ है कि हम ज्योति में चलें। That as far as I am concerned, to the best of my ability, in every area of my life, I want to be upright, I want to be holy, I want to be clean, and I want the Lord to look upon me
with a smile. और जितना मुझसे हो सकता है उतना ही मैं अपने जीवन में मैं शुद्ध रहना चाहता हूँ, मैं धर्मी ठहरना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरी तरफ देखें। And I don't hide anything. और मैं कोई कुछ भी बात छुपाता नहीं हूँ। It says there's a verse in Proverbs 28, chapter 28, verse 13. नीति वचन 28 उसके 13 वचन। It says, he who conceals his sin will not prosper, वहां पे कहा गया है कि जो अपने अपराधों को छिपा रखता है वो उन्नति नहीं पाएगा, but he who confesses it and forsakes it will find mercy. पर जो उसे उसका अंगीकार करता है, उसे छोड़ देता है, वो दया पाएगा। So I don't entertain private sins in my life. मेरे जीवन में जो निजी पाप है उसको मैं कभी भी नहीं होने देता। That is walking in the light. वही है ज्योति में चलना। And the other thing is that many Christians walk in unforgiveness और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे मसीहा जो है क्षमा नहीं करने वाली बात लेके चलते हैं and they get into all kinds of problems. और वो बहुत सारे समस्याओं में पड़ जाते हैं। We think unforgiveness or bearing a grudge or being angry at somebody is, although it is internal sin which nobody can uh, see, we think we can get away with it. और हम सोचते हैं कि ये जो क्षमा नहीं करना, नफरत रखना, गुस्सा रखना, भले ही ये जो अंदरूनी पाप है जो दिखता नहीं है परंतु हम इससे बच नहीं सकते। Refusing to forgive somebody is refusing to uh, let our shackles be removed from us. और किसी को क्षमा नहीं करने के लिए रुकावट बनना जो है हमारे जो पाँव में जो जंजीर बंधे हैं उसे खोलने खोलने नहीं देने के बराबर है। It does more damage to you than to the other person. दूसरे व्यक्ति को नुकसान करने की बजाय वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। It's like you're carrying fire in your heart to burn the other fellow, but that fire burns you first before ये it burns ऐसा the other person. ये ऐसा ही है जैसे कि आप जो है अपने हृदय में आग लेके चल रहे हो दूसरे व्यक्ति को जलाने के लिए, परंतु दूसरे व्यक्ति को जलाने से पहले ही वो जो आग है आपको जला देता है। It's so important that Jesus had to re emphasize that in chapter 6 of Matthew after he taught the disciples how to pray. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने सिखाने के बाद जो है मत्ती 6 अध्याय में इसके बारे में जोर दिया है। He told in 6:14 and 15 of Matthew, if you don't forgive the sins of others, even your heavenly Father will not forgive you. और वो कहते हैं 6 अध्याय के 14 और 15 वचन में, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। And Paul says, we are not ignorant of Satan's devices. और पौलुस कहता है कि हम शैतान की चालाकियों से जो है अनजान नहीं हैं। This is one of the devices of Satan. और ये शैतान की एक चालाकी है। Oh, he has done such harm to you, how can you forgive them? और उसने तुम्हारे लिए तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाई है, तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई है, कैसे क्षमा कर सकते हो। And you think you are justified in keeping that grudge or unforgiveness or bitterness against them. और आपको लगता है कि ये जो कड़वाहट या क्षमा नहीं करने वाली बात जो आपने अपने हृदय में रखी है ये तो सच सही बात है। But Jesus said, in other words, if I can say that, because you have prayed, so I am answering your prayer. और प्रभु यीशु मसीह ने इसे कहा दूसरे शब्दों में, क्योंकि तुमने प्रार्थना की इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता हूँ। What did you pray? You prayed, Father, forgive my sins as I forgive those who sin against me. आपने क्या प्रार्थना की कि पिता मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे कि मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा करता हूँ वैसे ही। But Mr. X, Y, and Z, I do not forgive because they have done much harm to me.
और वो जो फलाना फलाना व्यक्ति है उसे मैं बिल्कुल क्षमा नहीं करता, क्योंकि उसने मुझे चोट पहुंचाई, नुकसान पहुंचाई है। And the Lord also says, okay, I will answer your prayer. I will also not forgive you because you have not forgiven X, Y, and Z. और प्रभु भी आपसे कहते हैं कि क्योंकि तुमने वो जो फलाना व्यक्ति है उसे क्षमा नहीं किया है, तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। And where will these unforgiven people go? और ये जो क्षमा नहीं पाने वाले लोग कहाँ जाएंगे? You will join all of them. आप उन सबके साथ होंगे। Paul says in Colossians 3:13, पौलुस कुलुसियों 3 उसके 13 में कहता है, bearing with one another, एक दूसरे को सह लेना, forgiving each other, एक दूसरे को क्षमा करना, whoever has a complaint against anyone, जिसका भी किसी और पर दोष लगाने का कारण हो। just as the Lord forgave you, you also forgive. जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी क्षमा करो। And then the other one is delayed obedience or partial obedience. दूसरी बात यह है कि देरी से आज्ञा पालन करना या तो फिर आधा आज्ञा पालन करना। Saul said to, um, not Saul, Samuel said to Saul in 1 Samuel 15:22. पहला शमूएल 15 उसके 22 वचन में शमूएल जो है शाऊल से कहता है। He says, has the Lord so much pleasure or delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? फर्स्ट शमूएल 15:22 ब्रदर। Yeah. यस। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न होता है? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed or to listen than the fat of rams. जितना कि अपनी बात को माने जाने से प्रसन्न होता है, सुन मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। For rebellion is as the sin of divination, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। and insubordination is as iniquity and idolatry. और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। Because if we do that, the Lord also, if we reject these commands of the Lord also will reject us. यदि हमने परमेश्वर की इन आज्ञा को तुच्छ समझा, तो परमेश्वर भी हमें नाकार देगा, तुच्छ जानेगा। So these words are very serious. We need to take God's word seriously, dear brothers and sisters. तो भाइयों बहनों, ये जो बातें हैं बहुत ही गंभीर है, तो हमें परमेश्वर के वचनों को बहुत ही गंभीर रूप से लेना है। Not think that just I said sinner's prayer once upon a time, my sins are forgiven, I'm on my way to heaven. Such ऐसे नहीं कर people will have the shock of their life. और ये लोग जो कहते हैं कि मैं एक बार पापी था और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया और मैं अपने स्वर्ग जाने के राह पे हूँ, तो ऐसे लोगों को एक दिन जो है अचानक से जो है देख कुछ बातों को देखकर चौंक जाएंगे। Never compromise with sin. बिल्कुल भी पाप को लेकर समझौता नहीं करना। Bring it out and confess it, expose it to the light. और इसे बाहर लेके आना, उस बात का अंगीकार करना, उसे ज्योति में लाना। And you will be forgiven and you will have compassion. और ये आपको उन बातों से क्षमा दिया जाएगा और आपको दया दिखाई जाएगी। Just keep on what you watch हमेशा जो है सावधान रहें। and keep watch over what you listen to, और जो बातें आप सुनते हो उस पर आपको ध्यान देना है। what you constantly feed your mind with. आपके दिमाग में जिन चीजों से आप भर रहे हो उससे सावधान रहना है। What you feed is what you get. और आप जिस चीज से अपने मन को भरते हो वही आपको मिलता है। Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. प्रभु यीशु ने कहा कि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह के द्वारा बाहर निकलता है। Whatever you allow your mind and heart to be filled with, it will give it back to you.
और जो भी आप जो है अपने हृदय में और मन में भरने की जिन जिन बातों के लिए अनुमति देते हो, वो जब जो बातें हैं वो आपको वापस भी देता है। We were all like garbage bins before we came to the Lord. प्रभु यीशु में आने से पहले हम सभी जो है एक कूड़ेदान के समान थे। But when we came to the Lord in brokenness and repentance and confession and in जब faith, हम जब God विश्वास के forgave all our sins. जब विश्वास के साथ जो है पश्चाताप करते हुए टूटे हुए मन के साथ जो अंगीकार सारे पापों का अंगीकार करके हम परमेश्वर के सामने जब आए, तो परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिए। Then He says, neither will I condemn you, go and sin no more. और फिर वो कहते हैं कि मैं अब दोष नहीं लगाऊंगा तुम पर, अब जाओ वापस पाप ना करो, Lest something worse befall you. नहीं तो कुछ गलत और बदतर चीज जो है तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। Many people don't think about these verses. बहुत सारे लोग जो है इन वचनों के बारे में सोचते नहीं हैं। They only delight in the fact that their sins are forgiven. वो इस सिर्फ इस बात पर आनंद मनाते हैं कि उनके पापों की क्षमा हो गई है। That may be true, that may have happened in the past. ये सत्य भी हो सकता है, पूर्व काल में ये हुआ हुआ भी होगा। But how is your life today? पर आपका जीवन आज कैसा है? Are you walking in the light in obedience to God's word? क्या परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन में ज्योति में आप चल रहे हैं आज? Do not be deceived. Bad company corrupts good morals. बिल्कुल आप धोखा नहीं खाइए, क्योंकि बुरा चरित्र जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। One last verse from Proverbs 4:23. Most of us know this. नीति वचन 4 उसके 23 में आखिरी वचन आप में से अनेक लोग जानते हैं। Watch over your heart with all diligence, for out of it are springs of life. नीति वचन 4 उसका 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। So, this is the secret of godliness, dear brothers and sisters. प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वरीयता का जो रहस्य है वो यही है। Guard your heart with all diligence, कि अपने मन की रक्षा सब प्रकार से करें, because out of that only are issues or springs of life. क्योंकि उसी के द्वारा ही जीवन का मूल या स्रोत या समस्याएं आ सकती हैं। In another translation, it says, be careful about what you think. और दूसरे अनुवाद में ऐसा कहा गया है कि आप जिस बारे में सोचते हैं उसमें आप सावधान रहें। Your thoughts will shape your life. आपके जो सोच विचार है वो आपके जीवन को बनाता है। Let's surrender our thought life, our spirit, soul, heart, and mind to the Lord completely. हम अपने हृदय को, अपने सोच विचारों को, हमारे आत्मा प्राण और देह को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरीके से समर्पित कर दें। May the Lord help us. Shall we pray? परमेश्वर हमारी सहायता करें। क्या हम प्रार्थना करें? Father, we thank you for this time. परमेश्वर इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद। Thank you that you have forgiven ध- all our sins, धन्यवाद कि आपने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। and you have also promised us to give the help of the Holy Spirit to live this life till you call us home. और प्रभु आपने हमें वायदा किया है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम इस जीवन को जिए तब तक, जब आप हमें अपने घर में ना बुला ले तब तक। Help us every day to live in the fear of God, perfecting holiness. हमारी सहायता कीजिए कि प्रतिदिन जो है परमेश्वर का भय रखते हुए सिद्ध पवित्रता के साथ अपने जीवन को हम We बिताएं। believe you will help us और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी सहायता करेंगे, to will and to do of your good pleasure. ताकि हम आपकी इच्छा को, सुइच्छा को करें और आपके भले कामों को करें। We trust in your faithfulness, Lord. प्रभु आपके विश्वास योग्यता पर हम विश्वास करते हैं। We thank you for all these magnificent promises you've given us in your word. जी प्रभु, आपके जो वचन में जो अद्भुत चमत्कारी जो वायदे आपने दिए हैं, उन सारी बातों पर हम विश्वास करते, भरोसा रखते हैं। We bless you in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।